Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. Till now we have done 6 parts of the book, 6 chapters of the book completely along with their NCERT solution, and from today we are going to start new chapter, 7th chapter of the book, that is federalism. Right? Federalism, this word you are already aware, I think, about it. In 10th class also you have studied chapter federalism. Right? So the same chapter we are going to discuss in detail, because you must have understood, you must have listened many of the times that India is having federal structure, right? So federalism, basically what is this telling us? This is telling us that there is a division of power basically between center and states. That is defined in federalism, right? So today we are going to study this federalism, what is this federalism, and all the context related to India in this chapter we will discuss in detail. So let us start now. Firstly, let us have an introductory part of the chapter, that what we are going to study in this particular chapter. So look at the political map of the country. आप लोगों ने देखा होगा 1947 एंड 2017. यहाँ पे आप लोगों ने इतने टाइम पीरियड में आपने अगर लोगों ने मैप देखा होगा, यू विल बी एबल टू सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, राइट? दे हैव चेंज ड्रामेटिकली ओवर द ईयर्स. अब देखो यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, राइट? दिस इज द प्रेजेंट डे मैप ऑफ आवर कंट्री, राइट? और ये वाला मैप यहाँ देखो, एबल टू सी, एबल टू सी राजपुताना, ऑल दीज थिंग्स, सेंट्रल इंडिया, right? Hyderabad, Bombay, Mysore, right? This was the map of our country at the time of independence, right? Because we have made 14 states in our country at that particular time. So you are able to see, and if you see this map, you will be able to see a lot of states are there. We are having 28 states right now, right? So what we are able to find that in today's time, our country has changed drastically, और बहुत सारे changes इसमें आए हैं, right? Dramatically it has changed. So boundaries of states have changed. Boundary change हुई है. क्यों, कैसे? देखो, मान लिया पहले जहाँ 14 states थे, अब उन 14 से हम लोगों ने डबल कर दिया, तो of course boundaries will be changed definitely. Names of the state have changed. नेम भी बदले हैं. And the number of states have changed. नंबर भी चेंज हुआ है, इंक्रीज हो गया. When India became independent, we had a number of provinces that the British government had organized only for administrative convenience. जब हमने इंडिपेंडेंस गेन की ना, तो उस टाइम पे आप लोगों ने, अब आप नेक्स्ट क्लास में चीजें डिस्कस करने वाले हो डिटेल में कि कैसे कैसे इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने क्या क्या प्रोविजंस किए थे अपनी कंट्री में, राइट? तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया, हमने बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोविंसेस थे हमारी कंट्री में जो ब्रिटिश इंडिया ने क्यों ऑर्गेनाइज किए थे? ब्रिटिश इंडिया ने इसीलिए ऑर्गेनाइज किए थे ताकि वो इंडिपेंडेंटली और इजीली वो कैप्चर कर सके और कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके. ऐसा उन्होंने क्यों किया था? फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ताकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में ईजी हो जाए. उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने हमारे इंडिया को डिवाइड किया हुआ था, राइट? देन अ नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मर्ज विद द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन यूनियन. और आप लोगों ने सुना होगा कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई ना, तो वी वर हैविंग 565 प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स क्या होते थे? प्रिंस, देखो, प्रिंस मतलब राजकुमार, है ना? तो जिन पर किंग या प्रिंस का रूल होता था वो होते थे प्रिंसली स्टेट्स. और इसका क्या मतलब था? ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे बेसिकली, इनको ब्रिटिशर्स ने ना ऑटोनॉमी दी हुई थी. लेकिन अगर हमें इंडिया को एक टाइप से यूनाइट करना था, तो हमें इन प्रिंसली स्टेट्स का यूनिफिकेशन करना था इंडिया में. For that, Sardar Vallabhbhai Patel has done extraordinary job, है ना, excellent work, and just because of his efforts, we are able to see united India, one India today, right? तो ये princely states वही थे, got it? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे princely states बनाए हुए थे, provinces बनाए हुए थे, according to their convenient, administrative convenient. इसके अलावा बहुत सारे princely states थे जो हमने इंडिया के साथ मर्ज किए, right? उसके बाद these were joined to the existing provinces. और इनको फिर क्या कर लिया गया? एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस के साथ ज्वाइन कर लिया गया. दैट दिस इज व्हाट यू सी इन द फर्स्ट मैप. अब देखो, इसमें आप वही चीजें देख पा रहे हो, कितनी सारी प्रोविंसेस और वो सारी की सारी चीजें, बर्मा, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. आसाम, देखो कितना, ये नॉर्थ इंडिया का मैप कितना अलग था, एबल टू सी. यहां से भी चेंजेस थे, समझ आया? अब यही चीजें तो आपको शो हो रही हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आपने फर्स्ट मैप पे बहुत सारे चेंजेस देख लिए, राइट?
अब देखो इसके बाद, सिंस देन बाउंड्रीज ऑफ स्टेट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड मैनी टाइम, और उससे लेकर आज तक तो हमारी बाउंड्रीज क्या पता कितनी बार चेंज हुई है, राइट? बहुत बार हम लोगों ने इनको रीऑर्गेनाइज किया है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इंटायर पीरियड, नॉट ओनली डिड बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स चेंज, बट इन सम केसेस इवन देयर नेम्स चेंज्ड. नेम भी चेंज हुए, राइट, अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ दो स्टेट्स. अब देखो यहां पर आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी. यहां पर आपको हैदराबाद दिख रहा है, सेंट्रल प्रोविंसेस दिख रहे हैं, है ना. यहां पर आपको कुछ और दिख रहा है, राइट, गॉट इट. अब यहां पर आपको कुछ और चीजें दिख रही हैं, प्रोविंसेस, यूनाइटेड लखनऊ, राइट. यहां पर आपको जैसे ये मैसूर दिख रहा है, समझा. तो मतलब क्या है कि अब हमने सिर्फ स्टेट्स की बाउंड्रीज ही चेंज नहीं की, बल्कि उन बाउंड्रीज के साथ साथ उनके नेम्स भी चेंज हुए, गॉट इट. और वो अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ दो स्टेट्स. दस मैसूर चेंज टू कर्नाटका एंड मद्रास बिकम तमिलनाडु. जैसे पहले मद्रास का मैसूर किसका नाम था, जो प्रेजेंट डे में कर्नाटका है उसको क्या बोलते थे, मैसूर, और जो तमिलनाडु उसको क्या बोलते थे, मद्रास. This map shows these large scale changes that have taken place in the span of over 70 years. और ये मैप आपको यही दिखाता है कि हमारी कंट्री में कैसे कैसे चेंजेस हुए, कैसे कैसे हमारे टाइम पीरियड चेंज हुआ, हमारी कंट्री की बाउंड्रीज चेंज हुई, नेम्स चेंज हुए, राइट. इन अ वे these maps also tell us the story of functioning of feudalism in India. इसके अलावा हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि फेडरलिज्म कैसे फंक्शन कर रहा है हमारी कंट्री में. दिस इज ऑल्सो टोल्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. फाइन. अब देखो, अब इस चैप्टर को आप रीड क्यों करोगे, आफ्टर द रीडिंग ऑफ द चैप्टर व्हाट यू विल बी एबल टू गेट, आप लोगों को क्या समझ आएगा. तो देखो, व्हाट इज फेडरलिज्म, आप समझ जाओगे फेडरलिज्म होता क्या है. आपको समझ आएगा द फेडरल प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कंट्री में वो कौन से स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है कि हमारी कंट्री में ना फेडरल स्ट्रक्चर है. अलॉन्ग विद दैट द इशू इन्वॉल्व इन द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. इशू कौन कौन से, मतलब देखो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म्स में पावर्स का डिवीजन, राइट. लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार सेंटर और स्टेट के रिलेशन में एक टाइप से टेंशन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग सेंटर गवर्नमेंट को क्या लगता है, दैट आई एम द मोस्ट पावरफुल, राइट. फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने राइट शो करते हैं कहीं ना कहीं. तो ये चीजें हमें क्या भी दिखाती हैं कि कई बार टेंशन क्रिएट हो जाती है. एंड द स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट कंपोजिशन एंड हिस्टोरिकल फीचर. और इसके अलावा जो प्रोविजन है क्या दिखाता है, कुछ सर्टेन स्टेट्स हैं जिनकी एक अलग कंपोजिशन है और अलग उनका हिस्टोरिकल फीचर है. तो सारी की सारी चीजें आप समझ जाओगे आफ्टर द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. मैप वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि ये देखो क्या चीजें अलग, बहुत अलग अलग चीजें आपको शो हो रही हैं. और दिस इज द मैप ऑफ आवर कंट्री 1947, राइट, जब हमने 14 स्टेट्स ही बनाए थे. और ये जो मैप है, दिस इज इंडियाज मैप, पॉलिटिकल मैप, राइट. ये देखो इंडिया पॉलिटिकल, और यहां आपको क्या शो रहा है, आज जो प्रेजेंट डे का हमारी कंट्री है, राइट. जैसे आंध्र प्रदेश को हमने तेलंगाना बना दिया, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना दिया. यहां जम्मू कश्मीर को, ये देखो लद्दाख दिख रहा है आपको, राइट. ये जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया. फाइन. तो ये सारी की सारी चीजें. अब सबसे पहले जब आप, आई थिंक इंट्रोडक्टरी पार्ट इज क्लियर. अब सबसे पहले आप लोगों ने यही स्टडी किया था, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट इज फेडरलिज्म, राइट. तो सबसे पहले लेट अस हैव अ लुक कि एक्चुअल में फेडरलिज्म होता क्या है, राइट. अब यूएसएसआर was one of the world's superpowers, but after the 1989 it simply broke up into several independent countries. आप लोगों ने 9th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा, आप लोगों ने सोशलिज्म इन यूरोप चैप्टर पढ़ा होगा ना, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा लेनिन, स्टालिन, आप लोगों ने पढ़ा होगा यूएसएसआर की फॉर्मेशन, याद आया कुछ. तो वहां पे आप लोगों ने क्या स्टडी किया होगा, आपने स्टडी किया होगा कि हम जैसे यूएसएसआर बना ना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो वर्ल्ड की बहुत बड़ी एक ग्रुप में इंक्लूड हो रहा था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर थी. बट फिर क्या हुआ, 1989 में सिंपली ब्रोक डाउन हो गया, क्योंकि जो उसके अंदर स्टेट्स थे ना, 15 स्टेट थे, वो ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे. और फिर ये किस में डिवाइड हो गया, सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइड हो गया. वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर इट्स ब्रेकअप वाज द एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर. और देखो इसका रीजन क्यों था, क्यों, क्योंकि देखो अगर आप देखो, आप कभी रशियन हिस्ट्री को रीड करते हो ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रशिया में क्या हुआ था कि जब यूएसएसआर स्पेशली, कि जब यूएसएसआर की फॉर्मेशन होती है 1917 में, तो उसके बाद यूएसएसआर ने ना बहुत रैपिडली ग्रोथ गेन की थी, बहुत स्पीड से. लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन फिर फाइनली क्या होता है, 1989 तक आते आते ब्रेकडाउन होना शुरू होता है, और फाइनली 1991 में जाकर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का.
और जो उसका रीजन था ना बेसिकली, वो उस ब्रेकडाउन का रीजन क्या था, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो ये था क्योंकि यूएसएसआर जो ग्रुप था ना उसमें अलग अलग कंट्रीज इंक्लूड तो थी, बट जो डोमिनेंस था ना दैट वाज ऑफ रशिया। और उसी एक्सेसिव कंट्रोल की वजह से, उसी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की वजह से जो कंट्रीज इसमें इंक्लूड थी उन लोगों ने सोचा कि हमारा तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, हमें इंपॉर्टेंस मिल ही नहीं रहा है। इसलिए फाइनली क्या हो गया, फॉर जस्ट टू गेट ऑटोनॉमी दे हैव स्टार्टेड दैट यस वी शुड हैव सेपरेट, वी शुड बी सेपरेट नाउ फ्रॉम यूएसएसआर, नाउ वी कांट गो विद इट। तो फाइनली क्या हो गया कि जब क्या हो गया, ब्रेकअप हुआ फाइनली, और क्यों हुआ उसका रीजन था एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है पावर, देखो सेंट्रलाइजेशन, सेंटर की तरफ जो पावर क्या होगी एक टाइप से एक प्लेस पे सेंट्रलाइज्ड हो गई, यानी सारी की सारी पावर का सेंटर कहीं ना कहीं एक ही है। और यहां पे क्या हो रहा था, यूएसएसआर का जो सेंटर था दैट वाज रशिया। और क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, पावर को कंसंट्रेट कर दिया गया, यानी एक सिंगल हैंड से पावर क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, वहीं से पावर की अथॉरिटी और कंट्रीज को मिल रही थी। और क्या हो रहा था, एंड द डोमिनेशन ऑफ रशिया ओवर दीज रीजन्स विद इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड कल्चर्स ऑफ देयर ओन। अब देखो ये जो कंट्रीज हैं जैसे कौन कौन सी, जैसे चेकोस्लोवाकिया, उज्बेकिस्तान, यूगोस्लोवाकिया। अब देखो क्या होना शुरू हुआ, आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी की सारी कंट्रीज क्या किसकी पार्ट थी, ये सारी की सारी कंट्री पार्ट थी यूएसएसआर का। लेकिन अब उन लोगों ने क्या फील करना शुरू किया, अब उन लोगों ने फील करना शुरू किया कि जब हमारी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, हमारा इंडिपेंडेंट कल्चर है, तो फिर हम क्यों उस रशिया के डोमिनेशन को एक्सेप्ट करें। और जब उनके इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं हर्ट करना शुरू कर दिया रशिया ने, तो फाइनली वो लोग क्या हो गए, फाइनली लोगों ने एक्सेप्ट किया दैट यस नाउ इट्स ओवर, नाउ वी वांट टू बी सेपरेट। कंट्रीज लाइक चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया एंड पाकिस्तान आल्सो हैड टू फेस अ डिवीजन ऑफ द कंट्री। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाकिस्तान के कंटेक्स्ट को तो पढ़ा ही होगा ना, आप लोगों ने बांग्लादेश के बारे में स्टडी किया होगा। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, और जब क्योंकि डिस्टेंस इश्यू की वजह से क्या होगा, ईस्ट पाकिस्तान के लोग बोलेंगे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली नहीं चल रहा है, सेंट्रलाइजेशन कहां हो रहा है, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ हो रहा है पावर्स का, इसीलिए देयर शुड बी द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट। और बाद में फिर क्या होता है, विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन इट, और फाइनली क्या हो जाता है, 1971 में बांग्लादेश की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। तो आप लोगों ने देखा कि कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने डिवीजन को फेस किया है। सो कनाडा केम वेरी क्लोज टू अ ब्रेक अप बिटवीन द इंग्लिश स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग रीजन्स ऑफ द कंट्री। और कनाडा में भी क्या हुआ, कनाडा भी बहुत क्लोज आया ब्रेकअप के, कि उसका भी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होना था। क्यों, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, तो उनकी वजह से वहां पर भी डिमांड्स क्या हो रही थी, दैट देयर शुड बी डिवीजन, राइट। Isn't it a great achievement that India, which emerged as an independent nation state in 1947 after a painful partition, has remained united over 7 decades of its independent existence? तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज, इतना बड़ा ग्रुप यूएसएसआर, राइट, तो जब वो लोग क्या हो रहे हैं, वो लोग यूनाइट नहीं रह पाए, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि सोचो जरा इस बात को कि इंडिया अगर 7 डिकेड्स के बाद भी, मोर देन 7 डिकेड्स, उसके बाद भी अगर यूनाइटेड रह पाया, तो इजंट इज यूनिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, राइट। और इतने पेनफुल पार्टीशन के बाद भी, क्योंकि जैसे हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली, साथ में पेनफुल पार्टीशन भी तो मिला था ना हिस्ट्री में, राइट। तो यहां से क्या आप लोगों ने स्टडी किया, यहां से आप लोगों ने यही स्टडी किया कि अगर आप इंडिया के एग्जाम्पल को देखते हो तो क्या इट्स क्रिएटिंग अ यूनिक एग्जाम्पल ना, because after its independence or more than 70 years of its independence, we are able to see that yes, we are united. India has remained united, right? What accounts for this achievement? अब इस achievement का reason क्या है, क्यों हम आज तक united है? Can we attribute it to the federal structure of the governance that we in India adopted through our constitution? तो क्या हम इसका जो क्रेडिट है, हम इसका क्रेडिट फेडरल स्ट्रक्चर को दे सकते हैं, जिसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस चीज को अडॉप्ट किया। लेकिन याद रखना एक चीज हमेशा, फेडरल वर्ड कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वहां जस्ट ये मेंशन है कि इंडिया क्या होगा, इट विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल वर्ड, देयर इज नो एनी वर्ड लाइक फेडरल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो ऑल द कंट्रीज मेंशन अबव वर फेडरेशन, yet they could not remain united, राइट। तो फेडरेशन, अब देखो फेडरेशन क्या हो गया, फेडरेशन आप लोगों ने ना यूएसए का कंटेस्ट पढ़ा होगा, याद आ रहा है,
आप लोगों ने उसको कब पढ़ा होगा? आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा 10th क्लास में, राइट? तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे ये क्या है? ये है एसोसिएशन, ग्रुप एक टाइप से। जैसे आप लोगों ने यूएसए का कंसेप्ट पढ़ा होगा। हमारे इंडिया और यूएसए के बीच में जो डिफरेंस है ना, बेसिकली वो यही है कि उनका जो फेडरलिज्म है वो किसका एग्जांपल है? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, है ना? क्योंकि वो 13 सेपरेट कॉलोनी थे जो ऑटोनॉमी के लिए फाइट कर रहे थे, और फाइनली उन लोगों ने क्या किया? फाइनली उन लोगों ने अडॉप्ट किया दैट यस, हम सभी क्या कर सकते हैं? यूनाइट हो सकते हैं और एक कंट्री फॉर्म कर सकते हैं। बट इंडिया का फेडरलिज्म कैसा है? इंडिया का फेडरलिज्म है होल्डिंग टुगेदर। मतलब वहां पे यूएसए में क्या डिफरेंट है? यूएसए में ये डिफरेंस है कि वहां पर जो स्टेट्स हैं उनके पास ये भी अथॉरिटी कि वो सेंटर से सेपरेट हो सकते हैं। बट हमारे यहाँ का जो फेडरलिज्म है ना, बेसिकली उसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है? उसको कंपेयर किया जाता है गार्लैंड के साथ। जो पर्ल्स की गार्लैंड होती है, मोतियों की माला होती है, और उसमें क्या बोला गया है कि जो छोटे छोटे बीड्स इसमें लगे ना, मोती लगे हैं, पर्ल्स लगे हैं, ये तो क्या है? दीज आर आवर स्टेट्स। लेकिन जो सेंटर है वो क्या है? सेंटर इज द थ्रेड जो उसको बाइंड करके रखे हुए। समझ आया? मतलब अगर थ्रेड वीक भी हो जाए तो, मतलब थ्रेड अगर वीक हो जाए तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर थ्रेड ही वीक होगा तो फिर कोई सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन सोचो अगर कोई पल्स वीक हो गए, हमने एक पल को निकाल दिया, एक मोती को निकाल दिया, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्टेट को बाहर निकाला, बल्कि जैसे हम क्या कर देते हैं, 2 स्टेट्स को मिला के एक बना देते हैं। आई एम सेइंग इन दैट सेंस, राइट? तो मतलब देखो क्या हो जाता है, हमारी कंट्री का एग्जांपल क्या है? दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। यूएसए में क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। वो लोग एक साथ आए, वहां स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी है। तो यहां पर यही आपको बोल रहे हैं कि क्या जो हमारी कंट्री आज तक यूनिटी के साथ वर्क कर रही है, उसके लिए क्या हम क्रेडिट दे सकते हैं हमारी कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर को? देन ऑफ कोर्स वी कैन गिव इट। All the country mentioned above are federation, yet they could not remain united. Therefore, apart from adopting a federal constitution, the nature of the federal system and the practice of federalism must also be important factor. मतलब सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया क्या कि हमारी कंट्री फेडरल होने वाली है, और आपने कोई प्रोविजन किया ही नहीं उस चीज के रिगार्डिंग। तो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड मेंशन किया तो उसका हमें एग्जाम्पल भी सेट करना पड़ेगा, राइट? फाइन दैट। अब उसके बाद इंडिया इज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल, इंडिया इज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रपोर्शन एंड इमेंस डाइवर्सिटी। इंडिया को अगर आप देखते हो तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी का पार्ट आपको देखने को मिलता है ना, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, राइट? उसके अलावा और क्या है? उसके अलावा देयर आर मोर देन 20 मेजर लैंग्वेजेस एंड सेवरल 100 माइनर वंस। आज अगर आप देखते हो तो बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस भी हैं, राइट? आप लोगों ने सारी चीजें ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लास में रीड करके आए हो ना, राइट? तो मोर देन 20 लैंग्वेजेस है, राइट? तो अब देखो फिर क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको क्या बताती हैं? ये सारी की सारी चीजें आपको क्या बताती हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब देखो मोर देन 20 मतलब 22 लैंग्वेजेस आर देयर, ठीक है? 22 तो लैंग्वेजेस ही होगी, और इसके अलावा बोलियां भी हैं। ये तो लैंग्वेज है जिनकी प्रिस्क्रिप्ट होती है, उसके अलावा बोलियां भी तो है। इसके अलावा हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी है। सो इट्स द होम ऑफ सेवरल मेजर रिलीजन। इतने सारे रिलीजन हैं वर्ल्ड के, सबसे ज्यादा रिलीजन हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैनिज, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, ईसाई सभी आपको यहां मिल जाएंगे, राइट? तो इतने सारे रिलीजन भी हैं। देयर आर सेवरल मिलियन इंडिजिनियस पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और इतने सारे अलग अलग टाइप के लोग जो एक पार्ट में रह रहे हैं कंट्री के, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ डाइवर्सिटी। So in spite of all these diversities, we share a common landmass. लेकिन कॉमन चीज क्या है हमारे बीच में? कॉमन चीज ये कि इतने ज्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, हमें एक कॉमन लैंडमास शेयर करते हैं कि यस वी ऑल आर इंडियन, राइट? वी हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन आवर कॉमन हिस्ट्री। अब हम सबकी हिस्ट्री एक जैसी रही है। अब देखो कैसे, अगर मान लिया आप बात करोगे अरुणाचल प्रदेश के पीपल की, वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल थे कहीं ना कहीं। मतलब अगर आप तमिलनाडु की बात करोगे वहां पर भी ब्रिटिशर्स की एट्रोसिटीज हुई हैं। तो हमारी कॉमन हिस्ट्री रही है, राइट? ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के बाद तो कॉमन हिस्ट्री रही है ना, स्पेशली व्हेन वी फॉट फॉर इंडिपेंडेंस। और सभी की हिस्ट्री क्या रही है कि अगर आप सिर्फ एक पार्ट कंट्री का फाइट करते तो शायद कभी हम ब्रिटिशर्स को बाहर नहीं निकाल पाते कंट्री से। तो वो हिस्ट्री हमें क्या बताती है? हम सबकी कॉमन हिस्ट्री रही है, और उसी वजह से हम यूनाइट है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं कि हम सबने मिलकर तो इंडिया को फॉर्म किया है, हम सभी ने मिलकर तो इंडिया के लिए एफर्ट्स किए हैं, फ्रीडम स्ट्रगल किया है। समझ आया? तो फाइनली हम लोगों ने क्या किया कि हम सभी की क्या एक कॉमन हिस्ट्री है,
और स्पेशली किस फैक्टर के रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, राइट। वी ऑल्सो शेयर मैनी अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स, हम कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स भी शेयर करते हैं। दिस हैज लेड आवर नेशनल लीडर्स टू विजुअलाइज इंडिया एज अ कंट्री वेयर देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और देखो ये कंसेप्ट आपको क्या बताता है, इसीलिए हमारे लीडर्स ने क्या सोचा कि हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए वर्ल्ड में जो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी कंट्री में यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी है। मतलब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोगों के माइंड में एक फीलिंग है, वो सारे पार्ट से लेके, है ना, पहले हम क्या बोलते थे, कश्मीर टू कन्याकुमारी, एक फीलिंग यही है हमारे माइंड में, क्या है, दैट वी ऑल आर वन, वी ऑल आर इंडियंस ओनली। ये फीलिंग है ना जो सारी फीलिंग से सुप्रीम होती है, फाइन। अब उसके बाद दिस हैज, और ये हमारी किसकी कोटेशन है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने इसको इस जो डाइवर्सिटी ने इसको क्या कंसीडर किया, एज द ब्यूटी ऑफ द कंट्री। क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने का बेनिफिट क्या होता है कि आपको क्या मिलता है, डिफरेंट आइडियाज मिल रहे हैं जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, राइट। और इतनी ज्यादा डाइवर्स चीजें आपको क्या बनाती है, हमारे कल्चर को भी तो रिच बनाती है ना। हम क्या देख पा रहे हैं कि हर एक स्टेट का अपनी सेपरेट लैंग्वेज हो जाती है, सेपरेट कल्चर हो जाता है, सेपरेट आइडेंटिटी हो जाती है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इंडिया इज हैविंग अ वेरी रिच हेरिटेज, वेरी रिच कल्चर। तो ये सारी की सारी चीजों ने हमारे लिए किस लिए वर्क किया, फॉर द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, राइट। आप देखो सम टाइम इट इज डिस्क्राइब्ड एज यूनिटी विद डाइवर्सिटी, और कई बार इसे देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी और यूनिटी विद डाइवर्सिटी, मतलब इसको दोनों टर्म्स के साथ डिफाइन किया जाता है कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी है, डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी, और यूनिटी है डाइवर्सिटी के अंदर भी यूनिटी है, राइट। अब उसके बाद फेडरलिज्म डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स विच आर अप्लाइड टू डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशन, रादर फेडरलिज्म इज as a principle of government has evolved different in different situation, evolved differently in different situation। अब देखो फेडरलिज्म का क्या मतलब है, फेडरलिज्म does not consist of a set of fixed principles। फेडरलिज्म का ये मतलब नहीं कि आपने कुछ प्रिंसिपल्स फिक्स्ड कर दिए, आपने कुछ रूल्स रेगुलेशन फिक्स्ड कर दिए और वही अप्लाई हो रहे, दैट्स नॉट फेडरलिज्म। मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि हम फेडरल होने वाले हैं, उसके बाद आपने फॉर्मली चीजों को लिख दिया, फिक्स कर दिए कुछ प्रिंसिपल्स, एंड यू आर सेइंग दैट यस वी आर फेडरल, दैट्स नॉट फेडरलिज्म। क्यों, बल्कि क्या होता है, जो हमारी कंट्री में फेडरलिज्म कैसे होता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में हमारी गवर्नमेंट कैसे फंक्शनिंग कर रही है, हमारी गवर्नमेंट किन प्रिंसिपल्स को बेस बना रही है फॉर इट्स गवर्निंग, वो सारी की सारी चीजें क्या बना रही है, वो सारी की सारी चीजें कंबाइंड फॉर्म में दिखा रही हैं कि यस फेडरलिज्म इज देयर। समझ आया। अमेरिकन फेडरलिज्म, वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू बिल्ड अ फेडरल पॉलिटी, इज डिफरेंट फ्रॉम जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वहां पे क्या डिफरेंस है, वहां पे डिफरेंस ये है कि वहां पे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है और हमारी कंट्री में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, राइट। बट देयर आर ऑल्सो फ्यू की आइडियाज एंड कंसेप्ट एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जिसको आप किसके साथ कनेक्ट करते हो, जिसको आप कनेक्ट करते हो फेडरलिज्म के साथ। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फर्स्टली एसेंशियली फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट two sets of polities। अब ये क्या है, one at the regional level and second at the national level। as I already told you, फेडरलिज्म का मतलब क्या, फेडरलिज्म का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। मतलब मैकेनिज्म होंगी, डिफरेंट मैकेनिज्म होंगी, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होंगी, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट नेशनल लेवल पे भी। ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनॉमस इन इट्स ऑन स्फीयर। अब मान लिया हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, तो दोनों का अपना क्राइटेरिया है ना कि इस एरिया पर स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, तो सभी का अपना एक एरिया होता है वर्क करने का, राइट। इन सम फेडरल कंट्रीज देयर इज इवन अ सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। इंडिया हैज ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप, और कई कंट्रीज तो क्या होती है, ड्यूअल सिटीजनशिप। मतलब देखो जैसे यूएसए का आप एग्जांपल देखते हो, तो वहां पे क्या होगा, अगर यूएसए में कोई पर्सन रह रहा है तो वो यूएसए का भी सिटीजन होगा, और फॉर एग्जांपल वो कैलिफोर्निया रह रहा है तो कैलिफोर्निया का भी सिटीजन होगा। समझ आया। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में सिस्टम नहीं है। आप चाहे हरियाणा में रह रहे हो, आप पंजाब में रह रहे हो, चाहे आप तमिलनाडु में रह रहे हो, चाहे आसाम में रह रहे हो, आप सिर्फ इंडियन सिटीजन होगे, बिकॉज यू आर हैविंग सिंगल सिटीजनशिप ओनली। समझ आया। मतलब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा टू सेट ऑफ पॉलिटीज, राइट, वन ऑन द सेंट्रल लेवल एंड वन ऑन द स्टेट लेवल। गॉट इट। उसके बाद सेकंड, द पीपल लाइकवाइज हैव टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉयल्टीज, they belong to the region as well as and the nation also।
समझ आया? अब लोग क्या करेंगे, उनके पास दो आइडेंटिटी हो जाएंगी, वो स्टेट से भी बिलोंग करेंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं, और वो नेशन से भी बिलोंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी आर गुजरातीज, झारखंडीज एज वेल एज इंडियंस, है ना? तो मतलब ये होने के बावजूद भी हम ये हैं, हम गुजराती होने के बावजूद भी इंडियन हैं, हम झारखंडीज होने के बाद भी इंडियंस हैं. So each level of the polity has distinct powers and responsibility and has a separate system of government. और ये जितने भी लेवल्स बनते हैं ना गवर्नमेंट के, उन सभी की अपनी अपनी पावर्स हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और एक सिस्टम है, सेपरेट सिस्टम है गवर्नमेंट का. राइट? तो सेकंड आपको समझ आया? देखो फर्स्ट में तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि लेवल्स टू होंगे, बेसिकली सेंटर होगा और स्टेट होगा. राइट? और दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा कि आइडेंटिटी भी टू टाइप्स की होंगी, वन ऑन द सेंट्रल लेवल एंड सेकंड ऑन द स्टेट लेवल. मतलब स्टेट लेवल का होने के बावजूद भी आप लोग क्या फील करोगे, कॉमन आइडेंटिटी, कि आप उस कंट्री के सिटीजन हो. राइट? The details of this dual system of government are generally spelled out in Britain Constitution. और ये dual system की जो गवर्नमेंट के सारी की सारी चीजें ये मेंशन कहाँ होती है, डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है इन सब का, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, which is considered to be the supreme and which is also the source of the power of both sets of the government. और देखो ये वर्क क्यों कर पाता, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोच सकती है कि मैं तो पूरी की पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई शुड हैव मोर पावर्स. बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां हम लोगों ने क्या कर दिया, इन सारे के सारे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म दिया है. समझ आया? और रिटन फॉर्म की वजह से क्या है, जो पावर है वो दोनों के पास है, सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी. सर्टेन सब्जेक्ट्स विच कंसर्न द नेशन एज अ होल, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस और करेंसी आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट. रीजनल और लोकल मैटर्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट. मतलब हम लोगों ने देखो डिवीजन कैसे कर दिया कि कोई एक जो ऑर्गन है, एक जो लेवल है गवर्नमेंट का, वो सारी की सारी पावर्स को यूज ना कर ले. समझ आया? तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, क्लियर कट डिवीजन किया. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस के हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गई, तो उसको हमने किसके अंदर कैटेगराइज कर दिया. आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि हमारी कंट्री में 3 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. वो होती क्यों है? बिकॉज वी आर हैविंग फेडरल स्ट्रक्चर. और फेडरलिज्म का मतलब क्या, पावर्स को डिवाइड करना है. और जब पावर्स को डिवाइड करना तो इट मींस क्या होगा, इट मींस व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू गिव देम अथॉरिटी आल्सो ना. अदरवाइज क्या हो सकता है, देयर विल बी द इम्बैलेंस इन द पावर्स. और जब इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो फिर सोसाइटी भी इम्बैलेंस्ड हो जाएगी. राइट? इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन की हुई चीजें कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जो नेशंस के साथ डील करते हैं वो जाएंगे हमारे सेंट्रल लिस्ट में, और जो स्टेट्स के साथ डील करते हैं वो स्टेट लिस्ट में हो जाएंगे. और उन पर लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसी गवर्नमेंट को दी जो उसके साथ डील करती है. राइट? सो टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये थियरीज वर्क क्यों कर पा रही हैं, क्योंकि इन सभी चीजों को गारंटी देने के लिए क्या है, हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई है. राइट? टू सेटल डिस्प्यूट्स. और उसका काम क्या होता है, उसका काम है उन सारे के सारे डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करना. The judiciary has the powers to resolve disputes between the central government and the state or the legal matter about the division of powers. और हमारी मतलब क्या, हमारी जुडिशरी के पास क्या पावर है, जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उन सारे के सारे डिस्प्यूट्स, मतलब जो क्राइसिस हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उन सभी को रिजोल्व करने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. और क्यों? क्योंकि लीगल मैटर, क्योंकि वो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कंफ्यूजन होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एरियाज में अगर कंफ्लिक्ट होती है, तो उन सारे के सारे कंफ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, एंड दैट इज द जुडिशरी. फाइन. अब उसके बाद रियल पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री डिटरमाइन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ फेडरेशन. अब हमें पता कैसे चलता है कि एक्चुअल में वर्किंग कैसे हो रही है, तो वहां की पॉलिटिक्स कैसी है, वहां का कल्चर कैसा है, आइडियोलॉजी कैसी है और हिस्ट्री कैसी है, वो बताती है मैं एक्चुअल में कि फेडरलिज्म वर्क कैसे कर रहा है. राइट? आ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, कॉपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिस्ट्रेंट हेल्प फेडरेशन टू फंक्शन स्मूथली. और देखो क्या क्या चीजें बेसिक फैक्टर है, जैसे ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, मतलब हमारे स्टेट्स को ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उनके एरियाज में इंटरफेयर नहीं करेगी. सेंटर को ट्रस्ट होना चाहिए कि स्टेट दे आर दैट मच कैपेबल दैट दे आर एबल टू डू वर्क, सो नो नीड टू डू इंटरफेयर. राइट? तो इसके अलावा क्या है कि जो ट्रस्ट है एक कॉपरेशन है, दोनों के बीच में कॉपरेशन वर्क करता है. इसके अलावा जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, मतलब दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं सोचती कि मेरे पास सेंट्रल अथॉरिटी है, बल्कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ वर्क करते हैं. एंड रिस्ट्रेन हेल्प फेडरेशन टू
फंक्शन स्मूथली, सारी की सारी चीजें कि वो उन सारे के सारे फंक्शन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ये वो बेस है जो हमें बोलते कि यस इन एक्चुअली देयर इज द फेडरेशन, देयर इज फेडरलिज्म। पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो डिटरमाइन द वे अ कॉन्स्टिट्यूशन वुड वर्क, और पॉलिटिकल पार्टी भी बताती कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करेगा। इन अ सिंगल unit or state or linguistic group or ideology come to dominate the entire federation, it could generate a deep resentment among people or its unit not sharing the dominant voice. अब देखो अगर क्या है, अगर कोई एक सिंगल यूनिट है, राइट, और अगर सिंगल यूनिट कर रही है कंट्रोल, तो क्या करेगी, वो पावर को शेयर नहीं करेगी, समझ आया। और अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम जनरेट होगी, एंड दिस सिचुएशन कुड लीड टू डिमांड्स फॉर सक्सेशन बाय द अग्रीव्ड यूनिट्स और कुड इवन रिजल्ट इन सिविल वॉर्स। और देखो क्यों जरूरी है हमें पावर्स को डिवाइड करना, क्यों जरूरी है, क्योंकि पावर मेक्स अ मैन करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर मेक्स अ मैन करप्ट एब्सोल्युटली। तो अगर पावर्स हमने डिवाइड नहीं की तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, लोग कब तक टॉलरेट करेंगे, क्योंकि जब पावर वन हैंड में सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी ना तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। क्यों, क्योंकि फिर वो उस पावर को एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज करेंगे और जो उसके अगेंस्ट जाएंगे फिर उसको पेनलाइज करेंगे। तो यहां पे अगर पावर ऐसे सेंट्रलाइज्ड होना शुरू हो जाएगी तो किन किन चीजों को लीड कर सकती है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से लोग क्या कर सकते हैं, दिस सिचुएशन को लीड टू डिमांड फॉर सक्सेशन, कि हमें अलग कर दो, हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, बाय द अग्रीड यूनिट्स, और कुड इवन रिजल्ट इन द सिविल वॉर, और इवन कंट्री के अंदर वॉर हो जाते हैं, क्योंकि जब कुछ लोगों को लगता है कि हमें तो इंपॉर्टेंस मिल ही नहीं रहा तो फिर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। Many countries are embroiled in such conflict situation, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इन सारी के सारी चीजों को पढ़ा है, मतलब इन सारी की सारी चीजों को सहा है, टॉलरेट किया। फाइन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया यहां तक, जहां हमने अब बेसिकली हम लोगों ने क्या स्टडी किया, हम लोगों ने स्टडी किया फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म। आप लोगों ने स्टडी किया कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि यस हमारी कंट्री में फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है, और किन किन मेजर्स पे आप मेजर करके देखते हो कि यस फेडरलिज्म इज वर्किंग और नॉट, इज इट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली और इज इट वर्किंग इन एक्चुअली, राइट। तो ये है आपका व्हाट इज फेडरलिज्म। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज। I hope till here everything is completely clear to all of you, but if you are having doubts you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video. Till then keep revising, and if you like the video you can press the like button and please subscribe the channel as well so that you can get more informative videos. We will meet in next video with the topic Federalism in West Indies. Till then keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.